जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी, लख लख वार शुकराना गुरु जी। सारी संगत नूं मेरा जय गुरु जी, रूहानी आंटी नूं मेरा जय गुरु जी। संगत जी अज पूर्णिमा ते बुधवार का दिन गुरु चरणों के छोटा जिहा सत्संग लेके आई है। सत्संग करते कोई भुल चुक गलती हो गई, मेरे गुरु महाराज जी माफ़ करियो, संगत जी मैनू माफ़ करियो। पहला मैं अपना मंत्र जाप करदी हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी एकादशी वाले दिन मैं सत्संग पाया सी 25 तरीक नूं, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਬਾਜੀ ਪਲਟ ਜਾਏਗੀ। 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿਲ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਰਿੱਦਰ ਸਭ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਵਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਵਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। 4:30 ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 6:30 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਵਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਠ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਸ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਲਗਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਵੈ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਕੌੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਕੈਟਲੀ ਭਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਲਕਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਊਂਗਾ। 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਊਂਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। 25 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੱਸਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ। ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਿੰਟ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਲੜਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਮਤਲਬ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਗਾਤਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨੀਗਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 25-26 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਊ, ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ। ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਾਏ ਬਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੁਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੜਕੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਘਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਹੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਪਜਾਮਾ ਸੂਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਏਂਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੇ ਕੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੈ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਬੈਠੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਾਪਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਠੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਰੋਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਿਆ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜੇ ਕੋਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹਲੇ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਈ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਹਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੋਗੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੀ ਲੜਕੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੱਤ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਹਿੰਟ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਈਓ। ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਮਤਲਬ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
सत्संग गुरु महाराज ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪੁੰਨਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਈਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਲਾਈ ਰੱਖੀਓ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਈਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ, ਤੇ ਚਲੋ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਲਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਆ, ਜਿਸ ਮੌਜ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਛੋਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੜੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ क्षमा ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, अगस्त के महीने का पहला दिन है और आज मैं दोपहर को शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी से सबसे पहले ये प्रार्थना करती हूँ कि अगस्त के महीने में जो आज महीने की शुरुआत मेरी शुक्राना सत्संग के साथ हुई है, वो पूरे महीने, पूरे साल, हर पल, हर घड़ी मैं गुरु जी का यूं ही शुक्राना करती रहूं और अपने बहुत सारे अपने और अपने परिवार के सत्संग शेयर करती रहूं। गुरु महाराज का सुंदर मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, जुलाई के मंथ में गुरु जी का बर्थडे था और बहुत ही सुंदर मंथ, बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग्स गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार इनवाइट आया बहुत सारी जगहों का। माफ़ी चाहती हूँ, मैं सब जगह नहीं जा पाई गुरु जी, लेकिन मैं 2-3 सत्संग मुझे अटेंड करने का मौका मिला और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। गुरुजी ने बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर मुझे ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, कल मैं एक आंटी के घर सत्संग में गई, वो ब्लेसिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर सत्संग, बहुत ही प्यारा सत्संग। सिर्फ मुझे ही नहीं, वहाँ बैठी हुई हर संगत को लगा कि वो ऐसे सत्संग में हम बैठे हैं जैसे बड़े मंदिर के टाइम पर जो भी पुरानी संगत के हमने सत्संग सुने हैं, बिल्कुल बड़े मंदिर वाली फीलिंग आ रही थी। संगत जी, मुझे आज भी सत्संग शुरू करते ही वाइट पिजन के दर्शन हुए। मैं जब भी अपना सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ, गुरु महाराज मुझे वाइट पिजन के दर्शन ज़रूर देते हैं। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पा का। तो संगत जी, वो 2 घंटे का सत्संग था, शब्द गुरबानी बहुत ही सुंदर। और जैसे गुरु महाराज के समय में हमको चाय प्रसाद, जल प्रसाद सर्व होता था, जो सिर्फ तब चाय प्रसाद ही होता था। मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ ये कहने के पहले, लेकिन गुरु महाराज के यही वचन थे कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं चाहिए, बहुत महंगे डेकोरेशन नहीं चाहिए। तो संगत जी, कल वो सत्संग बिल्कुल वैसा था, कोई शोर नहीं था, कोई क्योस नहीं था, ज़्यादा आना जाना नहीं था। जितनी भी संगत थी वो सत्संग शुरू होने से पहले ही आकर वहाँ पे बैठ गई थी और सब बहुत अच्छे से मेडिटेट कर रहे थे। सबकी आंखें बंद थी, सब मगन थे, सबका दिल लगा हुआ था।
मैं अपनी तरफ से गुरु महाराज से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान भटका बहुत बार, लेकिन फिर भी वो बहुत 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 अच्छा माहौल था। तो बहुत अलग तरीके का सत्संग कल हमें ब्लेस हुआ। सत्संग ख़त्म होने के जो 5 मिनट पहले का टाइम था, उसमें एक पुरानी संगत आंटी का सत्संग प्ले हुआ। बहुत इमोशनल, बहुत मिरेकल से भरा हुआ वो एक सत्संग था। संगत जी, उसके बाद जब वो 2 घंटे का सत्संग हो जाता है, तो उन आंटी के घर पे जितनी भी संगत आई थी, मुझे और 1-2 लोगों को और छोड़ के हर एक संगत ने अपना सत्संग शेयर किया। अंकल, आंटी सब ने। संगत जी, मुझे लगता है कल मैं ऐसे सत्संग में गई हूँ जो मुझे शायद मैं बार बार जाना चाहूँगी और जहाँ से मुझे उठने का मन नहीं करेगा। मेरा भी मन किया कि मैं सत्संग शेयर करूँ, बट मैं सोचती ही रह गई। गुरु महाराज और संगत जी मुझे उसके लिए क्षमा करें। लेकिन कल मैंने इतने सारे सत्संग सुने जिसके लिए मैं गुरु जी की शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे कोई कष्ट उन्होंने काटे हैं कल सत्संग सुना के। और संगत जी, मैं पहले भी ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि मैं अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में हूँ प्रेगनेंसी के, और अब मेरा एक ब्लड टेस्ट पेंडिंग था जिसमें मुझे थोड़ा इंट्यूशन भी था कि मुझे डायबिटीज़ प्री डायबिटिक मैं हो सकती हूँ, या थोड़ा मेरी शुगर लेवल ऊपर नीचे चल रही है। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, टेस्ट करा लेते हैं। संगत जी, आप बिलीव करेंगे, वो टेस्ट मेरा 3 दिन से डिले हो रहा था। एक दिन लैब वाला आया नहीं, एक दिन बुक नहीं हुआ, एक दिन वो कैंसिल हो गया। और कल जब मैं कल सत्संग का लंगर प्रसाद खाकर आई हूँ संगत जी, आज मेरा वो टेस्ट हुआ है। तो ये भी मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये सब हमारे गुरु जी का रचा हुआ है, ये सब हमारे गुरु जी की महिमा है। उन्होंने हमें ब्लेस करना है तो वो पहले हमें सत्संग में बुलाएंगे, लंगर प्रसाद खिलाएंगे, चाय प्रसाद और शब्द गुरबानी सत्संग सुनाना, जो भी उनके ब्लेस करने के सुंदर तरीके हैं, पहले उन्होंने मुझे ब्लेस किया, फिर आज मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। संगत जी, रिपोर्ट भी आ गई है और इसीलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग भी शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का दिल से, आत्मा से, रोम रोम से शुक्राना है। मेरी रिपोर्ट ठीक आई है, शुक्राना है गुरु जी। और अब मुझे थोड़ा ध्यान रखने को बोला है डॉक्टर ने। अभी भी बॉर्डर लाइन पर जो मेरी शुगर है वो बढ़ी नहीं है थैंकफुली, लेकिन जो भी बॉर्डर पर आई है उसमें मुझे कंट्रोल करना है। तो बहुत शुक्राना है गुरु जी का कि मुझे समय रहते पता चल गया, जिससे कि मैं और मेरा बेबी दोनों हेल्दी रहें। अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी का जल प्रसाद लूँगी और मुझे पता है गुरु जी जब सारे पैरामीटर्स अच्छे आते हैं तो फिर शुगर और ये ब्लड, थायराइड में क्या ही चीज़ है। थायराइड भी बिल्कुल परफेक्ट आया है गुरु जी। जितनी भी चीज़ें थी गुरु जी की कृपा से संगत जी, वो सब कुछ परफेक्ट आई हैं और अभी तक के मेरे सारे स्कैन्स भी बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं। ये मेरे गुरु जी की महिमा है। मैं जब भी स्कैन के लिए जाती हूँ, मैं उनका चंदन तिलक और जल प्रसाद ज़रूर लेके जाती हूँ और मैं ज़रूर उनको बोलती हूँ, गुरु जी हमारे साथ रहना, हमारे साथ चलना। संगत जी, आज सुबह भी जब मैं ब्लड टेस्ट करा के आ रही थी, बल्कि जाते वक्त भी, मुझे दोनों बार ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरु जी की गाड़ी के दर्शन हुए। और सिर्फ इतना ही नहीं, कल परसों जब मैं क्लिनिक भी गई थी तो भी मुझे 777 गुरु जी की गाड़ी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरु जी का स्टिकर स्वरूप के दर्शन, बहुत बहुत सारे सुंदर सुंदर दर्शन मुझे मेरे गुरु महाराज ने ब्लेस किए। जितना मैं उनका शुक्राना करूं कम है, जितनी मैं उनकी वडियाई करूं कम है। गुरु महाराज इतना ब्लेस करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। उनकी ब्लेसिंग्स का कोई अंत नहीं है, बेअंत ब्लेसिंग्स हैं। और कल संगत के सत्संग सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कैसे वो रिपोर्ट्स बदल देते थे गुरुजी। और आज भी जब वो चोले में थे तब भी, और अब जब नहीं है तब भी, वो हम सबके पास हैं। और संगत के सत्संग सुन के संगत जी, कल मुझे यही एक सीख मिली है कि गुरु महाराज पे विश्वास रखो, वो क्या नहीं कर सकते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो बहुत 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 शुक्राना है गुरु महाराज। आपने कितने सारे लोगों की लाइफ ब्लेस करी, आपने कितने लोगों को सही राह दिखाई, और वही आप मेरे साथ भी आपने कितनी बार मुझे ब्लेस किया, मेरे परिवार को ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी से गुरु जी का साथ मांगना है,
जो भी बात है दुनिया की या अपनी, वो गुरु जी से कहनी है और किसी से भी शेयर नहीं करनी। गुरु महाराज से अपने बच्चों की खैर खबर मांगनी है। गुरु महाराज ने ही हमारे परिवार का कल्याण करना है। उनके चरणों में सरेंडर है और बस शुक्राना ही शुक्राना है। गुरुपा, आप मुझे यूं ही सत्संग में बुलाते रहें और आप मुझसे ऐसे ही शुक्राना 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 करवाते रहें। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हुई हो, आप मुझे क्षमा करें। मैं अभी अपने सत्संग को विराम दूंगी और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। शुक्रवार का दिन है, आज है 17 जुलाई। इस टाइम 2:30 हो रहे हैं और महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी। शुक्रवार का शुक्राना है। सबसे पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे ज़्यादा सत्संग शेयर करूँगी। अभी ट्यूसडे की बात है, मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है, वो 14 जुलाई। तो हम लोग शाम को मार्केट वगैरह गए और प्रसाद वगैरह भी लगाना था। काम थे 2-4 मार्केट के, ऐसी राशन वगैरह। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरु महाराज को कह के चली थी, गुरु महाराज जी अंग संग रहना, संग संग रहना। तो मेरे अंकल एक्टिवा चला रहे थे। 1-2 बार हुआ ऐसा। मेरे अंकल ना थोड़ा जब चलाते हैं ना तो थोड़ा सा इधर उधर देखते रहते हैं, मतलब चलाते हुए थोड़ा कभी लेफ़्ट को देख लिया, कभी राइट को। तो अभी रात का टाइम था, 9 बज रहे थे, तो हम सामान समून लेके निकले और मैं तो सामने देख रही थी। अंकल ने थोड़ा सा ध्यान हटाया, मतलब थोड़ा सा पीछे को देखा, साइड को। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं संगत जी, सामने से ना एक बाइक पे 2 लड़के आ रहे थे सामने से तेज़ी से, और मेरा हस्बैंड भी मतलब हल्का सा ध्यान हटा था। तो मैंने एकदम से इनको बोला, मैं कहा सामने देखो, सामने देखो। और संगत जी, महाराज मतलब नहीं तो टक्कर हो जानी थी संगत जी। महाराज ने इतना इतना बचाया, इतना इतना बचाया, नहीं तो पता नहीं, क्योंकि महाराज जी के बहुत मैसेज भी आ रहे थे कि दुर्घटना होने वाली है, शुक्राना लिख दे, कष्ट टल जाएगा। तो वो जो सामने से 2 लड़के एकदम से, मतलब थोड़ा सा ही गैप रह गया था एक्टिवा और उनके। अगर हस्बैंड थोड़ा सा भी ध्यान और पलटा रह जाता तो ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाना था संगत जी। तो महाराज का बहुत 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि गुरु महाराज जी ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवा रहे हैं, क्योंकि ये सब तो होता ही इन चीज़ों से है संगत जी। क्योंकि गुरु जी महाराज जी कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, सब ब्लैक मैजिक की वजह से होता है। कोई तुम्हारे दर्द है कहीं या कुछ भी है, जो भी है। और कल की बात सुनाती हूँ संगत जी। कल भी हम लोग बेटे को स्विमिंग लेके गए शाम को 6 बजे। फिर हमने मार्केट के काम करने थे। बेटी के पास चाबी नहीं थी, तो बेटी का मूड ऑफ हो गया, उसको बाहर बैठना पड़ गया सीढ़ियों में। और वो बैठी रही 1-2 घंटा। उसका मूड ज़्यादा ही, उसको गुस्सा आ गया, पता नहीं किसी ने नेगेटिविटी सेंड करी थी या क्या था, जो भी था। और आते ही उस चाबी चुबी हमने उसको दी। तो मैं उन्हें बोला, तू कहीं और बैठ जाती, जाके मंदिर में किसी घर बैठ जाती। संगत जी, वो मतलब उसको बहुत एकदम जितना गुस्सा आया, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी किसी ने छोड़ी थी। उसने आते ही मतलब और आते ही मैंने जहाँ डस्टिंग करी थी उसकी अलमीरा की, उसने ना संगत जी सारा ऐसे उड़ेल के फेंक दिया संगत जी, पता नहीं। फिर मैंने मन ही मन गुरु जी को याद किया। मैंने अपने आप को भी मन में शांत करवाया कि नहीं, तो नहीं, अब इसको कुछ नहीं बोलना। और गुरु महाराज ने आके इतना, मतलब मेरे को एकदम से मेरे को माइंड में डाला कि तू शांत हो जा, बस चुप रह। और वो बेचारी मतलब मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि भाई तू यहाँ क्यों बैठी है। तो उससे हमने पूछा भी था कि तेरे पास चाबी है, कहती हाँ है, बट उसके बैग में निकली नहीं चाबी। तो उसको गुस्सा भी आ रहा था कि भी मेरे को बाहर बैठना पड़ गया। तो मैंने भी कौन सा गलत बोला संगत जी कि तू कहीं किसी के घर बैठ जाती है, बाहर जाके किसी शोरूम में बैठ जाती है ना। तो बट वही है ना, बच्चे आजकल के बड़े अजीब से हैं। तो गुरु महाराज जी, फिर उसके बाद मैंने गुरु महाराज का मन ही मन शुक्राना किया। फिर बच्चों के बर्गर वगैरह लाए थे, वो बाहर जाके लेट गई। उसके फिर पापा ने उसको मनाया, अंदर लेके आए उसको। फिर मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला। बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ टिक्कीज़ वगैरह तल के दी, बच्चों ने खाया। फिर उसने खा लिया संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना। नहीं तो कई बार मैं गुस्से में ना बहुत बोल जाती हूँ, बट गुरु महाराज ने मेरे को कल शांत कराया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद कल हम जल्दी सो गए थे, 10 बजे ही सब काम कुम निबेड़ के, बड़े अच्छे से नींद आई। सुबह उठी, थोड़ा घबराहट सी थी हार्ट के आसपास। महाराज ने 4 बजे उठाया, थोड़ा महाराज का शुक्राना किया उस टाइम अमृत वेला में। उसके बाद मन हुआ कि मंत्र जाप करूं, पता नहीं लेकिन कब नींद लग गई। एंड उसके बाद वही रूटीन, बेटे को स्कूल छोड़ के आई तो महाराज 7/70 पर 7 की ब्लेसिंग्स दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का।
और गुरु महाराज का बहुत 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 शुक्राना है। गुरु महाराज का हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। आज बड़े ही पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं गुरु महाराज के कि भी अब ये मैसेज बार बार आ रहा है, मेरे पास तेरा औखा टाइम कट दिता, मेरी कृपा का प्रभाव तेन शाम तो दिखना शुरू हो जाए। तो सच में बहुत पॉजिटिविटी है। थैंक यू। आज 2 बार महाराज मेरे बेड़े में आए बटरफ्लाई रूप में। एक बार सुबह आए जब मैं नाश्ता बना रही थी, 9 बजे की बात है, और मैंने महाराज को मंत्र जाप किया, शुक्राना किया, और जो मन में था वो बोल दिया महाराज को। इसके लिए बहुत 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 महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं क्योंकि तुम जो लोग तुम्हारी हार देखने के लिए बैठे हैं उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे सिर पे महाशिव का हाथ है, तो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें हार नहीं दूंगा। तो बहुत प्यारा मैसेज है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये मैसेज भी बहुत आ रहा है मेरे पास, तेरे घर के भीतर अब नई रोशनी प्रवेश कर रही है। ये रोशनी तेरे बच्चों की कामयाबी की शुरुआत है। अगले 3 दिनों में तुझे वो संदेश मिलेगा जिस पर तेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस बार वो खुशी के आंसू होंगे। तो शुक्राना 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 कर 777 की ब्लेसिंग्स के साथ। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और महाराज कह रहे हैं शुक्रवार के दिन तेरी सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। शुक्राना कर, शुक्राना गुरु जी, मेरी सारी मुसीबतें ख़त्म करने के लिए बहुत 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 शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं। गुरु महाराज जी कह रहे हैं बहुत पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं आज तेरी सेहत ठीक हो जाएगी। शुक्राना कर। बच्चों की जब से शुक्राना करती हुई बेटी, आज सुबह से अच्छा पॉजिटिव माहौल है घर में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बेटे की जल्दी छुट्टी होगी, बेटा भी खाना खुना खा के खेलने चला गया, उसके लिए शुक्राना। और देखिए संगत जी, मैंने गुरु महाराज को बोला कि गुरु महाराज जी इसके अंग संग जाना, सामने ही जाता है वैसे तो खेलने, कि गुरु महाराज जी इसके संग संग जाना, आप जाना इसके साथ साथ। तो आप मानेंगे नहीं, जैसे ही मैंने बोला एक बटरफ्लाई आई नीचे बेड़े में से, उसके साथ साथ वो उनके घर तक गई। देखो महाराज कैसे सुनते हैं। आज महाराज जी 2 बार मेरे पिछले बेड़े में आए, पता नहीं गुरु जी, और तभी उसके बाद ही गुरु जी का मैसेज आता है कि तेरे को जब मैं तेरे को तितली स्वरूप में तेरे को दर्शन देता हूँ, तेरे साथ हूँ, तो तू क्यों चिंता करती है, जा ऐश कर, शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु जी कह रहे बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, बस तेरी शुक्राने की देर है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कह रहे तेरी सारी मुसीबतें ख़त्म होने वाली हैं, तो शुक्राना कर, शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं जिसको मतलब पढ़ के सुकून मिलता है। और सच में ऐसा होता है संगत जी, जब हम मानसिक रूप से थोड़े परेशान होते थे तो महाराज के मैसेजेस पे कमेंट करके बहुत आनंद आता है। महाराज तितली रूप में हमेशा अंग संग रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज 2 बार महाराज आए, पता नहीं कौन सा कष्ट था मेरे परिवार पे जो महाराज ने टाल दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज सुबह भी मैसेज आया था कि मेरा मुँह मीठा करवा, अब तेरी ज़िंदगी में मिठास बनी रहेगी। बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने 100% अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि तू सहन नहीं कर सकती। तो इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। हमें सत्संग शेयर करवाने के लिए महाराज का बहुत 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 शुक्राना, शुक्राना। बेटी की रात को बेटी की अरदास लगाई कि महाराज बच्चों को थोड़ा समझ दो, मतलब ठीक है अगर ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से चिड़चिड़ापन तो बाहर, बट फिर भी आप समझ दो, घर में प्यार का माहौल बना रहे, सुख शांति का माहौल बना रहे। यही अरदास रहती है महाराज से कि महाराज सारा ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी परमानेंट काटो। जो कर रहा है मैं तो उनको भी माफ़ करती हूँ, गुरु जी कह रहे हैं, क्योंकि कर्मा लौट कर जरूर आता है, इस बात को समझ। तो मुझे नहीं पता महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो बस महाराज से यही अरदास रहती कि महाराज हमें अच्छी समझ दें, अच्छी मतलब बुद्धि दें, मेरे हस्बैंड को भी अच्छी बुद्धि दें, पूरे परिवार को अच्छी हेल्थ दें। बस अपना हाथ हमेशा रखना। गुरु जी कह रहे थे आसपास साजिशों का जाल है, बट तू फिक्र मत कर, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। महाराज जी बहुत पॉजिटिव मैसेजेस देते हो आप। गुरु जी कह रहे हैं कि भी पैसों की भी समस्या ख़त्म होने वाली है, तो शुक्राना कर, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज इतने आपने मतलब इतनी पॉजिटिविटी है मन में, मतलब खुशी है। और महाराज को मैंने आज दलिया, मीठा दलिया बनाया था, उसका भोग लगाया, फिर हम सब ने खाया और बहुत एनर्जी आई। और महाराज को मूली के पराठों का भोग लगाया दही के साथ मैंने, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, मतलब कई बार परीक्षा बहुत लेते हैं। गुरु जी आज मैसेज दे रहे हैं कि अब तेरी परीक्षा ख़त्म हो गई, अब तेरे पास कोई भी दुख फटक नहीं सकता। तो थैंक यू गुरु जी, बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया है कि परीक्षा ख़त्म हो गई है। तो थैंक यू, शुक्राना शुक्राना। बट कुछ नहीं पता महाराज कब ले लेते हैं, नींबू की तरह छोड़ देते हैं। और बहुत 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 शुक्राना है महाराज का। गुरु जी कह रहे हैं आज तेरी सारी मुसीबतें ख़त्म होने वाली हैं, तेरी सारी समस्याएँ ख़त्म होने वाली हैं। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महाराज खुशियों के बहुत अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं, बच्चों के लिए भी पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि तू बच्चों की चिंता ना किया कर। तो बस
कल का दिन भी मतलब था तो ऐसा ही बस, क्योंकि अमावस के बाद जो ये चीज़ें होती हैं तो ये इफ़ेक्ट करती हैं, बट महाराज ने बाल तक नहीं बांका होने दिया। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना है। तो गुरु जी कह रहे हैं अपने हस्बैंड का भी ध्यान रख, इशारा दे रहा हूँ, शुक्राना कर दे, कष्ट काट दूंगा। शुक्राना गुरु जी, हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना, बच्चों की तरफ से भी शुक्राना। बेटे को थोड़ा कल से जुकाम है, बट महाराज पे पूरा यकीन है, क्योंकि महाराज को अपनी बागडोर सौंप दी है, तो महाराज जैसा करेंगे आप ठीक करना, क्योंकि आप ठीक ही करते हो, हमेशा किसी का बुरा नहीं चाहते आप तो मतलब जो बुरे लोग हैं उनको भी आप समझ देते हो कि भी इन रस्तों से हट जाओ। महाराज बता तो रहे हैं कि कोई औरत है जो तेरा मतलब उसकी अति हो गई है, अब तो अति के बाद तो पता ही है संगत जी, ये हमें भी पता है कि महाराज को तो पता है कि ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो मन में कई बार सोचते हैं ना संगत जी कि महाराज रोक क्यों नहीं रहे हैं, तो क्या पता हमारे कर्म कटवा रहे हैं गुरु महाराज जी, है ना। तो गुरु जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है तेरे घर, शुक्राना कर, शुक्राना महाराज। लक्ष्मी माता का शुक्राना, गुरु जी कह रहे हैं लक्ष्मी माता तेरे घर के बाहर खड़ी है, शुक्राना करके अंदर बुला ले। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना है गुरु महाराज जी। और संगत जी, जैसा कि महाराज बताते हैं कि रोज़ सुबह उठते पॉजिटिव बातें बोलो तो सारा दिन अच्छा जाता है। रात को सोने से पहले बोलो मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, मेरा परिवार सुखी है और मेरे घर में खूब अपार सुख शांति समृद्धि आ रही है और कल का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा। तो पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव ही हम अट्रैक्ट करेंगे। कई बार बट हम हो जाते थे नेगेटिव ड्यू टू सम रीजंस, मतलब ये महाराज की टेस्टिंग परीक्षा भी चलती रहती है। तो महाराज ने बहुत मतलब उस दिन 14 जुलाई को बचाया मेरे हस्बैंड और हमारा एक्सीडेंट होने से बचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी को कह के चलो गुरु जी हम जा रहे हैं, अंग संग रहना, संग संग रहना। शुक्राना गुरु जी, कल का दिन भी बहुत अच्छा गया और थोड़ी नेगेटिविटी थी बट महाराज ने वो भी दूर करी, ऐसा कोई वो बात नहीं थी। और आज का दिन भी बहुत अच्छा जा रहा है, सब गए हुए, इसलिए मैं घर पे अकेली हूँ और मतलब मन लग रहा है घर में, काम काज में भी मन लग रहा है। तो थैंक यू गुरु जी, आज आप 2 बार बटरफ्लाई रूप में मेरे घर आए, पता नहीं कौन कौन से कष्ट लेके गए। तो थैंक यू गुरु महाराज जी। बर्थडे का इनवाइट आया बेटे के लिए, बहन की बेटे का बर्थडे है 6 बजे, तो अभी गिफ्ट लेने जाऊँगी उसके लिए। और अभी देखो महाराज ने 11-11 की ब्लेसिंग्स दी सत्संग रिकॉर्ड करते हुए, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु महाराज का बहुत शुक्राना है, 2-3 सत्संग सुनवाए जिसमें था कि ये सत्संग सुन ले तू बड़े बड़े कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मौका मिलता है सत्संग जरूर सुनती हूँ, कई बार नहीं सुन पाती हूँ तो क्षमा करना गुरु जी, आगे पीछे होके सुन लेती हूँ। बाकी वही पंचवाणियों का पाठ चलाया, सुखमनी साहब का पाठ और शब्द बानी सब वगैरह चला के भी बहुत सुकून मिलता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है घर में। तो पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ महाराज आपका, बच्चों की तरफ से शुक्राना है, दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना है, पति जी की तरफ से शुक्राना, मेरा खुद का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, तूने हमारा हाथ थामा हुआ है, यही बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु महाराज जी। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत कृपा करते हो आप, हर पल कृपा करते हो गुरु महाराज जी। बड़े मंदिर बुला के अपने लंगर से ब्लेस करते हो, जल प्रसाद से ब्लेस करते हो, सत्संग में बुलाते हो और बहुत कृपा करते हो, बहुत हमेशा हमारे अंग संग रहते हो, कभी भी कोई परेशानी आती है, मन में कोई कुछ भी आता है बट आप आके हमेशा अंग संग रहते हो। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट गुरु महाराज जी, थैंक यू सो वेरी मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी रूहानी आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, मैं यहाँ पे कुछ सत्संग अपने भाई के शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु महाराज जब परिवार में कुछ लोगों को कनेक्ट करते हैं लेकिन कुछ लोगों को नहीं करते हैं, क्योंकि सबका अपना टाइमिंग्स है। और गुरु महाराज ने मेरे भाई को आज से 3 साल पहले अपने से कनेक्ट नहीं किया था और उसकी शादी थी। संगत जी, मेरी मम्मा काफ़ी चीज़ों को लेके थोड़ी परेशान थी। उन्होंने गुरु महाराज से अरदास की थी कि गुरु महाराज आपने ही सब कुछ करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि मेरे को वीज़ा स्टैंपिंग नहीं मिल रही थी और
बहुत चीज़ें जो मम्मा को परेशान कर रही थी, और गुरु महाराज ने, संगत जी जैसे बोलते हैं ना, हर कम करावन आया राम। एंड गुरु महाराज केम और एक एक चीज़ गुरु महाराज ने करवाई। संगत जी स्टार्टिंग से जब मेरा वीज़ा स्टैंपिंग की डेट नहीं मिल रही थी, और जब मुझे जाना था उससे कुछ टाइम पहले ही मुझे वीज़ा स्टैंपिंग की डेट मिल जाती है। मेरा जो भाई है उसके लिए जब शादी के लिए वेन्यू देख रहे थे, बहुत सारे वेन्यूज़ देखे। एक वेन्यू जो छतरपुर में था वो पसंद आया, वहाँ गुरु महाराज का स्वरूप भी लगा था। लेकिन जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन की बुकिंग ऑलरेडी थी। लेकिन गुरु महाराज ने, संगत जी, वो बुकिंग कैंसिल करवाई, और वो दिन हमें मिला जहाँ जहाँ कोई भी फंक्शन था, वहाँ वहाँ जो जो वेन्यू सेलेक्ट हुआ वहाँ पे गुरु महाराज का स्वरूप लगा था। वो भी गुरु संगत थे। जहाँ जहाँ शॉपिंग करने जाना था वहाँ वहाँ हर शॉप पे गुरु महाराज का स्वरूप था। संगत जी गुरु महाराज ने, क्योंकि शादी छतरपुर में थी, कुछ लोगों को, हम सब फैमिली मेम्बर्स को बड़े मंदिर भी बुलाया। उसके बाद जब शादी, इवन दो वो कनेक्टेड नहीं था गुरु महाराज से, लेकिन गुरु महाराज ने घर में सत्संग भी कराया। हालांकि वो उसमें नहीं आया, लेकिन गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स पूरी दी। संगत जी ये भी कई बार गुरु महाराज के ब्लेसिंग्स देने के तरीके हैं। एक आंटी जो पुरानी संगत थी, गुरु महाराज ने उनको ये बोला था कि अब 5 साल तू ना मेरे को देखेगी और ना मेरे पास आएगी, लेकिन उनको दूर रख के ही ब्लेसिंग्स देनी थी। कई बार गुरु महाराज किसी संगत को बाहर से ही मिल के बोल देते थे कि जा तेरा कल्याण कर देता। अब उनके कल्याण करने के तरीके बहुत अलग हैं, और गुरु महाराज कई बार हमें अपने आप से जोड़ते नहीं हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स पूरी दे रहे होते हैं। और वही हो रहा था संगत जी। और गुरु महाराज ने जहाँ जहाँ मम्मा को परेशानी आ रही थी वहाँ वहाँ गुरु महाराज ने आके वो सारे काम करवाए। वो टाइम ऐसा था संगत जी कि मेरे नाना को भी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरे नाना की, उनको खांसी में ब्लड आने लगा था, और मेरी मम्मा परेशान होके गुरु महाराज से जब अरदास की थी। अगले दिन एक सेवादार अंकल डुगरी से अपने आप ही जल प्रसाद की बॉटल ले आए। उन्होंने वो, मम्मा ने बॉटल एक मेरे नानू को भिजवाई, उनको गुरु महाराज के बारे में बताया। अब संगत जी गुरु महाराज के बारे में उनको नहीं पता था। जब वो जल प्रसाद पिया और टेस्ट करवाने गए तो सारे टेस्ट नॉर्मल आए। उनकी खांसी रुक गई, उनका ब्लड आना रुक गया, और ही इज़ ऑल फिट एंड फाइन नाउ। गुरु महाराज ने जब जिसको ब्लेसिंग्स देनी है, इवन दो वो उनसे जुड़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु महाराज उनको अपनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का कि वो हर चीज़ गुरु महाराज ने करवाई जो उनको बॉदर कर रही थी, और सब कुछ बहुत अच्छे से करवाया। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, और आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।